So we are representing Tavaga. We are a SEBI-registered investment advisors, and in today's initiatives, what we have done is we have partnered with TradeSmart, and Tavaga and TradeSmart partnership is such that we provide the advisory inputs, and execution happens for TradeSmart users on the TradeSmart platform. So that what we do essentially, just a quick introduction. We are SEBI-registered investment advisors. We are a pioneering fintech company based out of Bombay. The platform is called Robo Advisory. Now, Robo Advisory is something very simple where you have sort of goals set up on our platform, and these goals in turn sort of do your asset allocation, and depending on various risk profile and asset allocation that you will do, we will actually advise you on a portfolio of exchange traded funds, ETFs only, and these ETFs in turn are sort of getting executed on TradeSmart platform. So that's the sort of a robo advisory sort of a platform which is hosted on TradeSmart portal. I think some of you would have heard about it already, but if not, then please reach out to your TradeSmart sort of contact point, and they will probably educate more about how to get started with our advisory services. What is unique about our advisory is that every individual is different and every goal is different. So what you see is, in terms of, you might have a very risk sort of, affinity towards risk. But if you are moving closer to your goals, we will actually divert your portfolio on a glide path investing to more conservative portfolio. Everything goes into exchange traded funds, so that's where, you have tremendous cost savings running into your portal as well. But from diversification perspective, we are actually diversifying your exposure to Nasdaq 100, to gold, to domestic equities, and large cap and mid cap and so on. And that's the way we are sort of running this platform. So on that note, I'll probably hand over this presentation from here on to Vaibhav Jain, who's heading our institutional advisory business. And with that, we also sort of will sort of brief about that. Vaibhav, over Yeah, to you, thanks. Vaibhav. Yeah, thanks, Nitin. Thanks a lot. So I had the advisory part at Tavaga. Today's session is more on the discipline of investing. So I think the first point which is mentioned out here is very clear. Earlier we start, the better. Nitin, can you just move on to the next slide, please? Thanks. Now, see the first point which is mentioned out here, and I'll just give you a brief why are these points and the rationale behind these points. This is experience, pure experience, what is coming out here, and this is more out of practice and personal experiences while advising our clients that these points have been listed. So the first point that comes is the most important one, equity research. If equity research is not possible on our own, so then we need to consult our broker or advisor. Basically, what we have tried to put out here is very simple. Ki research is the foundation for any stock pick or any investment decision, right? So अगर research खुद से possible नहीं है, because most of the investors primary profession is not stock trading, right? So you need to consult some qualified advice. उसमें ध्यान ये रखना है, what is more important to be noted is that that advice needs to be unbiased, as in the broker or advisor needs to do a thorough research, and then without his own personal, his or her personal interest, that advice needs to come to the investor. Or else अगर अपन खुद कर सकते हैं research, the investors can do on their own, well and good, but then it is a very time consuming and a continuous effort. So I don't know how many of us can do it. When I say us, I count myself also in this, because it requires a lot of research with so much of financial happenings happening across the globe. It's difficult to keep a track of everything. तो research के बिना कोई भी stock pick नहीं होना चाहिए. अच्छा, for starters, second point आ रहा है कि ideal to start stockwise SIP for long term. What I mean herein is basically म्यूचुअल फंड में SIPs तो हम काफी टाइम से कर रहे हैं, एडवर्टाइज भी बहुत होता है, so people have that habit of doing a SIP in mutual fund. What I am suggesting here is कि once we research the stocks और ये stocks को हम कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उनमें भी हम SIP कर लें, इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड डायरेक्ट स्टॉक में SIP कर लें. एंड डे एंड डेट कैन वेरी, स्टॉक पिकिंग में कोई फिक्स डेट नहीं होती है.
सो हम फ्लेक्सिबल हैं, उस चीज में हमको रहना चाहिए, बट हमको एक मंथली काइंड ऑफ रिसर्च, वेल रिसर्च स्टॉक्स में, कंसिस्टेंट स्टॉक में मंथली हमको एसआईपी कर लेनी चाहिए, जो भी हमारा इन्वेस्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर हम कर सकते हैं. So for example, a consistent stock company X, let's say even a Reliance, if I can name that stock, तो अगर हमको लगता है कि this has been a consistent performer, तो every month हमको जब लगे, because markets by trend ऊपर जाने चाहिए, that is why people are investing into it, right? So मगर हम अगर expensive valuation हो रही है तो भी उसमें हम थोड़ा बहुत SIP कर लेना चाहिए, because you never know, that stock may not even correct, right? So that is one thing हमको ध्यान रखना चाहिए. इसको हमने नाम दिया स्टैगर्ड लमसम इंस्टेड ऑफ एसआईपी. द बेटर टर्म इज स्टैगर्ड लमसम, और ये हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से करेंगे. हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उसको हमको हमारा फाइनेंशियल गोल से लिंक करना होगा. तो कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. और ये जो मैं पॉइंट स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ, जिसको मैंने एसआईपी इन स्टॉक्स बोला है या स्टैगर्ड लमसम इन स्टॉक्स बोला है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा. तो उसमें हमको मार्केट्स को टाइम करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज स्टॉक्स कंसिस्टेंट है, फंडामेंटली गुड है, उनकी गवर्नेंस अच्छी है और हिस्टोरिकल रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, तो हम उसमें स्टैगर्ड लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक में हम कंसंट्रेशन ना करें. कोई फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स pharma was very attractive, FMCG was very attractive in the last 3-4 months, but इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा पैसा उन्हीं स्टॉक्स में लगा दें. IT was doing very well, but अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो IT थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका है. आफ्टर अ वेरी गुड रैली IT सेक्टर स्टैग्नेंट हो चुका है. तो ऐसा ना हो कि हम सारा पैसा IT में ही डाल दें, तो उसमें ये होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी. हमने दूसरे सेक्टर्स को इग्नोर किया और अब हम वो सेक्टर्स रन अप कर रहे हैं. सो ऑल द सेक्टर्स डोंट रन अप साइमल्टेनियसली. सो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा. और जैसे कहते हैं डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, तो ये चीज का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक ही सेक्टर में या एक दो तीन स्टॉक्स में हमको कंसंट्रेट नहीं होना है. Next, again, a very important point is that, which is in continuation to the third point, is that all money should not be invested in one go, right? So when I say that, मतलब it is a no-brainer, right? मतलब सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है. मगर इसमें एक थोड़ा सा out of our experience we have listed that we should always have twice the money available to be deployed at lower levels. यानी suppose we have 100 rupees एंड हम वन शॉट में हम सिर्फ 30 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, रेस्ट 33 टू बी प्रिसाइज. रेस्ट जो 66 बचा है वो हम जो मार्केट्स थोड़ा सा हमको लगता है करेक्ट हुआ है, अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव है कितना करेक्ट होना, बट इतना पैसा हमेशा होना चाहिए एट द पॉइंट की डबल की हम नेक्स्ट इंस्टेंस में हम इन्वेस्ट करें. तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है कि वी शुड ऑलवेज कीपिंग आवरसेल्व्स flush with funds to be taken to take the advantage of fall in the market. तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है. Nitin, if you can help me with the next slide, please. Yeah. Thanks. Now, these are some practical. Once we have decided the how to invest, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है. The next point comes in कि frequent stock hopping should be avoided. When I say this, for example, अगर स्टॉक आपका थोड़ा सा आपके वैल्यूएशन से कम पे भी है, तो दैट डजंट मीन दैट यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक इन द सेम सेक्टर और नेक्स्ट सेक्टर. नाउ देयर वाज अ रिसर्च, द रीजन यू यूज दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जिस कारण से आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, वो रीजन ओवरनाइट कभी भी चेंज नहीं होता है. गुड गवर्न कंपनीज में फंडामेंटल्स जनरली इतने फ्रीक्वेंटली बदलते नहीं, अनलेस एंड अनटिल समथिंग कैटास्ट्रॉफिक हैपेंस. तो there is no reason why you should be frequently stock hopping. तो थोड़ा सा वो हमको ध्यान रखना है. नोशनल लॉस है तो उस पर रह सकते हैं, बिकॉज आपका डिसीजन साउंड रिसर्च बैक था, आपको स्टिक करना चाहिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा थोड़ा कम है टू बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स. सो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड्स, जिसको हम कहते हैं कि डेली स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, उन पे हम थोड़ा सा अगर हम करें ध्यान रखें तो ठीक है. बिकॉज पोजीशंस आप अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी
तो फिर आपको आज जो न्यू सेबी रूल्स के हिसाब से आपको सेम डे क्लियर करना है, तो आपके पास बाकी स्टॉक्स पिक करने के लिए फ्यूचर डेज में पैसा नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा देखना है हमको, बट अगर हमको पैसा कम है, इन्वेस्टेबल सरप्लस कम है, तो थोड़ा सा हमको स्टॉक पिक्स और केयरफुल रहना पड़ेगा कि वही स्टॉक्स में हम पैसा डालें जिसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये point specific is not applicable to all investors, but this is for some new investors who want to just start and experience themselves what is stock trading। तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट्स उसी में है कि लॉन्ग टर्म हमको वही स्टॉक्स कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए जिनको हमने वेल रिसर्च किया हुआ है एंड हमारी परचेज प्राइस से कम भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नितिन, थैंक्स। Now, this is very important. The portfolio review. The portfolio review needs to be done. This is every 3 months जो मैंने लिखा है यहाँ पे. This is kind of the maximum limit. It is earlier the better, more frequently the better. तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है कि रिव्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आईटी लास्ट 15 डेज से पहले बहुत अच्छा रैली कर रहा था, बट अब आपके रिटर्न स्टैग्नेंट हो चुके हैं। The companies like TCS, Infosys, HCL Tech came with stellar results, बट हम देखेंगे कि पोस्ट रिजल्ट्स वो रैली फिजल आउट हो चुकी है और अब रेंज बाउंड घूम रहे हैं। तो अगर हमने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया होता तो हमारे जो रिटर्न्स आए थे वो रिटर्न स्टैग्नेंट हो गए हैं। तो अगर हम रिव्यू करेंगे तो हमको हम समझ में आएगा कि क्या हमको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो मेरा कि नेक्स्ट पॉइंट भी है कि एज द मार्केट एडवांसेस पार्शियल प्रॉफिट्स नीड टू बी बुक। सो हम प्रॉफिट्स बुक करके क्या दूसरे सेक्टर्स ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं एट दिस मोमेंट, सो वी नीड टू बी केयरफुल, मतलब एंड कि हम उसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली रिव्यू कर लें, एक नजर देख लें, थोड़ा सा ट्रेंड देख लें 2-3-4 दिन का। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि शायद अब जो रिटर्न्स आ रहे थे उनमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। क्या परसेंटेज होगा वो इन्वेस्टर स्पेसिफिक है, देयर इज नो ऐसे कोई नंबर है कि 20%, 30%, 40%, 50% प्रॉफिट। दैट इज वॉट एवर इज द इन्वेस्टर कंफर्टेबल, वो प्रॉफिट बुक कर लें, उसको हम लिक्विडेट कर लें और हम नेक्स्ट मोस्ट रिसर्च जो हमको लगता है अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है उसमें हम डाल लें। एक पॉइंट बहुत अच्छा है, जो एफएनओज जैसे जो स्टैंडर्ड सेइंग कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का, दे मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिटर्न पोटेंशियल सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। सो क्या हमको एफएनओ में डालना चाहिए? द आंसर इज यस एंड नो। अगर आपके पास टाइम है, यू कैन ट्रैक इट द सेकंड बेसिस, तो बिल्कुल आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। But having said that, this is more riskier also, the perhaps one of the highest riskiest investment avenue। तो आपको एफएनओ में तभी डालना चाहिए जब आप वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक तो दूसरा चीज ये है, उसको आप माइन्यूटली ट्रैक कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम्स कब रिवर्स हो आपको, आप उसको लेके भूल नहीं सकते हैं। सो कैश सेगमेंट अगर न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो आई वुड रिकमेंड, थोड़ा सेफ रहता है। आप अपने if you are testing the waters, you start with the cash segment, and once you are becoming a pro in terms of trading in cash segment, you can move on to the futures and option, but उसमें फिर आपको regular और consistent उसको track करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप you need to be careful while taking F&O positions। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने सोचा कि मतलब काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। Nitin, if you can just, I guess that's the next last slide on the pointers. If you can just move on to the next slide. या ये हमने कुछ क्लासिफाई किए हैं कि what are the multi-bagger stocks. So by definition, a multi-bagger stock is a stock which has given you a more than 100% return. मतलब 100% से ज्यादा उसने रिटर्न दिया है, यानी आपका स्टॉक डबल हो गया है। जो फ्यूचर सॉरी जो आने वाली 2 स्लाइड्स हैं, वो आपको ये बताएगा कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो हमने 2 क्लासिफाई किया है, एक है मल्टीबैगर कैटेगरी और दूसरा है कंसिस्टेंट स्टॉक कैटेगरी। और मैं ट्राई लिंक करूंगा अपने पुराने पॉइंट से इन दोनों स्टॉक्स के डेफिनेशन में। सो मतलब मल्टीबैगर्स कौन से स्टॉक होते हैं, कुछ उनके पीछे रैशनल होता है क्या? सो डेफिनेटली जिनका फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, व्हेन आई से फंडामेंटल्स, उनके ऑर्डर बुक्स, उनका प्रॉफिटेबिलिटी, उनका
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मैनेजमेंट साउंड होता है, गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग होती है और ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब इन्वेस्टर्स आर अवेयर कि उनके स्टॉक्स में क्या चल रहा है। तो वो ऐसी कंपनियां, देर आर चांसेस कि दे विल आइदर फॉल इनटू अ मल्टीबैगर कैटेगरी और कंसिस्टेंट स्टॉक परफॉर्मर कैटेगरी। जनरली जो स्मॉल कैप्स होते हैं दे हैव अ पोटेंशियल टू गिव परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा रिटर्न्स, जो हम आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें मल्टीबैगर या कंसिस्टेंट स्टॉक। तो ये जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, आपको फंडामेंटली साउंड कंपनीज को सेलेक्ट करना होगा। थोड़ा सा इंडस्ट्री नॉलेज आपको जरूरी है उसके लिए, कि क्या इंडस्ट्री नॉलेज आपको रखनी है एक स्टॉक पिक आने में, जो मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नितिन, थैंक यू। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स के, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, लॉरस लैब्स, वैभव ग्लोबल, एम्बर एंटरप्राइजेस। ये मैं आपको इनमें से दो एक कंपनीज के बारे में बताना चाहूँगा। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जो बेसिकली को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है आपके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोडक्शन लिंक्ड मोबाइल हैंडसेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंसेंटिव आया है पीएफआई स्कीम के थ्रू। तो डिक्सॉन इज वन ऑफ द एंड परहैप्स द ओनली वन हु हैज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दैट स्कीम। एंड आप देख रहे हैं कि दिस इज अ मल्टी बैगर स्टॉक, मतलब इट हैज यील्डेड अराउंड 477% रिटर्न्स। तो रफली आपका पैसा 4.5 गुना हो चुका है डिक्सॉन में अगर आपने डाला होता। और लिस्टिंग भी इसकी जो हुई थी वो लिस्टिंग से तो खैर 2,500 पौने 3,000 के आसपास इसकी शायद लिस्टिंग हुई थी। तो अभी 11,855 करंट मार्केट प्राइस है। नाउ ऑब्वियसली पॉलिसी डिसीजन था गवर्नमेंट का पीएफआई स्कीम का, चाइना से हमारे जो टेंशन्स चल रहे हैं उस कारण से इस टेक्नोलॉजी स्क्रिप्ट में बहुत अच्छी रैली आई है। बट क्या हम इसको पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते थे? शायद जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, बट आगे चल के अगर ये कंपनी साउंड है इसी के लिए इसमें इतनी रैली आई है एंड कंसिस्टेंटली ये आपको रिटर्न्स दे रहा है। अब थोड़ा सा हम स्टॉक में प्राइस देख सकते हैं, थोड़ा सा भी मतलब डिसेंट टाइप ऑफ करेक्शन जो कहते हैं 5% 7% करेक्शन आए तो हम इसमें वापस से एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली एम्बर एंटरप्राइजेस, आई थिंक ये ओईएम मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एयर कंडीशनिंग इसका फोटे है। एयर कंडीशनिंग मोस्ट ऑफ द एमएनसी ब्रांड्स के लिए एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर करता है। अगेन ट्रेड टेंशंस के कारण कंपनीज विल बी काइंड ऑफ इंसेंटिवाइज टू प्रोक्योर फ्रॉम एम्बर। तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि देर आर साउंड रैशनल बिहाइंड वाई दी स्टॉक्स आर रैलिंग। और हम एज एन एडवाइजरी हाउस हमेशा फंडामेंटल्स पे ड्राइव करते हैं। इसके अलावा कोई रीजन होगा तो वो स्टॉक यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा जिसके पीछे हमको भी कोई रीजन नहीं दिखा है। सो ये डिक्सॉन एंड एम्बर ये दो स्टॉक्स हैं जो कि मल्टी बैगर्स रहे हैं। एम्बर एट करंट मार्केट प्राइस हैज गिवन 222% रिटर्न ओवर अ 1 ईयर पीरियड, और डिक्सॉन आपने देखा था 477% रिटर्न। सो स्टेलर रैली, मतलब अनपैरेलल काइंड ऑफ रैली रही है। बाकी दोनों स्टॉक्स में भी आपने देखा है, लॉरस में इट्स क्लोज टू मतलब 23% काइंड ऑफ रैली। वैभव ग्लोबल है, ये भी आपको ठीक ठाक रैली दिया है। सो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड नितिन प्लीज। या थैंक यू। नाउ ये स्लाइड से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कंसिस्टेंट स्टॉक्स कौन से रहे हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज फीचर कर रहा है यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक फीचर कर रहा है, आयशा मोटर्स फीचर कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका ऑल टाइम हाई 2300 के ऊपर था। वो क्या रीजन रहा, आई गेस काफी इन्वेस्टर्स जानते हैं, बिकॉज ये एक लार्ज कैप स्टॉक है तो मीडिया में भी सब बाहर आ जाती चीजें। सो बेसिकली जो इतना एफडीआई आया ड्यूरिंग कोरोना ऑल्सो, मतलब दे हैव डन अ स्टेलर जॉब, फिनोमिनल जॉब ब्रिंगिंग इन एफडीआई। प्लस दूसरा इसमें ये है कि डी लिस्टिंग होगी तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। देयर आर टॉक्स कि जियो प्लेटफॉर्म लिस्ट होगा, सॉरी डी लिस्टिंग वॉज द रॉन्ग वर्ड, लिस्टिंग है, मतलब सब्सिडरीज लिस्ट होंगी। रिलायंस रिटेल जो है वो लिस्ट होगा। प्लस इन्होंने जो बिग बाजार के साथ जो बीच में इनका डील हुआ है जो कि अमेजन ने कंटेस्ट किया, बट आई गेस सीसीआई ने उसको अप्रूव कर दिया है। सो सूनर और लेटर वो भी एकदम
मतलब क्लीन हो जाएगा, उसमें भी कोई इशू लग नहीं रहा है एज ऑफ नाउ। सिमिलरली HDFC बैंक, वेरी साउंड फंडामेंटल्स, लीस्ट एनपीए इन द इंडस्ट्री, बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। तो जैसे ये जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं, इनमें भी थोड़ा सा आप ट्रेंड एनालिसिस कर लें। ट्रेंड एनालिसिस आई गेस इन्वेस्टर्स जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली जब आप प्राइस मूवमेंट्स को आप ट्रैक करते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि 52 वीक हाई से रिलायंस इंडस्ट्रीज करेक्ट हो चुका है अराउंड 400 रुपीज। तो दिस कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट। आप स्टैगर्ड लमसम इसमें डाल सकते हैं, जो कि मैंने पॉइंटर्स में डाला था। सिमिलरली HDFC बैंक थोड़ा सा करेक्ट होता है, जो कि हर वीक में एक दो बार आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जब आप इन स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं, तो वो आप लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ले सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में न्यूज़ ये है, जो MSCI में जो इसकी एंट्री हुई है, तो लास्ट 15 दिन में आप देखेंगे कि स्टैलर रैली आई है इसके अंदर। मतलब फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1400 इट्स अप्रिशिएटेड बाय 480 450 रुपीज, 1900 भी टच हो चुका है इसका 52 वीक हाई। तो थोड़ा सा हमको ये ट्रैक रखना होगा। आजकल जो ये सब चीजें कंसिस्टेंट वाली मीडिया में भी काफी जल्दी आउट हो जाती हैं, और आप जो भी मीडिया, चाहे आप मोबाइल ऐप्स हैं, चाहे टेलीविजन न्यूज़ हैं, उनको आप ट्रैक करते हैं, उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें कि जो उनकी तरफ से जो रिसर्च आ रही है वो उसमें कितनी जेन्युइननेस है और कितनी सही बैठ रही है। और एक बार आप उनसे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, तो आप उसको फ्यूचर के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस पर्टिकुलर रिसर्च हाउस को भी आप मतलब ध्यान में रख सकते हैं। तो अनबायस्ड रिसर्च जो हम कह रहे हैं और जो क्वालिफाइड रिसर्च है, उसको आप ट्रैक करके ये स्टॉक्स को आप इजीली पिकअप कर सकते हैं। नितिन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, सो ये PPT हमारी एंड हो रही है।